Hello friends, welcome back to the channel. So I think this is our first video in 2025. So बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया था. तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है रेडिस. सो इन दिस ट्यूटोरियल विल सी what is redis, what are the main feature of redis and how we can use redis in our application. So let's see what is redis. Remote dictionary server. Okay, so this is redis. This is a remote dictionary server. It is a data structure server. Data structure server क्यों? Because it supports various data structures such as strings, hash, list और sets, bitmaps. ये सारे डाटा स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करता है. ठीक है, दैट्स वाई डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है मीन्स क्या, सारे डाटा स्ट्रक्चर में हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं. इट ऑलवेज सेव्स डाटा इन द रैम, दैट्स वाई यू कॉल इट इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर. And data structure, why? Because data structure server, why? Because it supports various types of data structure. Okay, because it stored data in RAM always, that's why it is much faster to write or read from compared to disk storage. ठीक है, अगर आप रैम में कुछ रीड राइट ऑपरेशन करते हो तो ऑब्वियसली इट विल बी सो फास्ट दैन द डिस्क स्टोरेज. That's why redis is so fast. That's why in the industry it is popular nowadays. The use of redis is increasing day by day. Okay, so and it uses a single threaded event loop to handle commands. Like we know javascript also uses single threaded event loop to handle commands. नाउ अगर आप बोलोगे कि अच्छा एक सिंगल थ्रेडेड है तो कैसे मल्टीपल रिक्वेस्ट और मल्टीपल कमांड्स को कैसे हैंडल करता है. सो ऐसे ही हैंडल करते हैं. बेसिकली पैरेललिज्म नहीं होता है यहाँ पे, कंकरेंसी काम करता है. कंकरेंसी इज बेसिकली इट इज़ ए इल्यूजन ऑफ पैरेललिज्म. मतलब आपको लगता है कि साथ साथ एक टाइम में दो काम हो रहा है बट नहीं होता है. ऐसे मैनेज किया जाता है कि एक टाइम में दो काम होता है, आपको दिखता है, बट एक टाइम में एक ही काम होता है इन ए सिंगल थ्रेड. सो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख लेती हूँ. तो ये है हमारा रिमोट डिक्शनरी सर्वर. सेकेंड एक डाटा स्ट्रक्चर, इट इज ए डाटा स्ट्रक्चर server because it supports various types of data structure DS such as string, hash, set, list, bitmap and also sorted sets. Okay, and it is also called in memory DS. Why? It always store data in RAM. That is why much faster to write or read from compared to disk storage. Okay, so this is clear I think. And it uses a single threaded event loop to handle command like JavaScript. Okay, that's it is actually very famous for what? For its speed, like it's very much fast and its efficiency. तो इसका मेन फोकस जैसे होता है कि कैशिंग हम क्यों यूज़ करते हैं कि डाटाबेस पे थोड़ा लोड कम पड़े. एक बार डाटा आपको मिल गया तो सेकेंड टाइम अगर सेम डाटा आपको चाहिए डाटाबेस से ना लेके हम कैश से ले सकते हैं, कैश मेमोरी से ले सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए कैशिंग यूज होता है. कैशिंग में डाटाबेस के ऊपर लोड कम हो जाता है
एंड स्पीड भी डाटा हो जाता है, क्योंकि कैश तो अपनी ही रैम में पड़ा है, वहाँ से डाटा लेके दे देगा आपको, डाटाबेस को सर्च करके नहीं देगा। तो ऑब्वियसली डाटाबेस के ऊपर लोड रिड्यूस लोड ऑन डीबी एंड स्पीड अप रिट्रीवल। Okay, it is also used to store your session data, like for web application you are using, you can store the session data as well. So session management also you can do, sessions management you can use to store your session data in web app. You can store session data for your web app. देन आप इसको मैसेज ब्रोकर की तरह भी यूज कर सकते हो, मैसेज ब्रोकर, बिकॉज द पॉप्स अप फीचर मेक्स इट suitable for message brokering and real time messaging, like event driven communication you can do, real time messaging you can do. Okay, real time messaging or real time notifications, event driven communication, these things you can do, real time messaging and our event driven communication. So these are the few features of Redis. हम कैसे की तरह यूज कर सकते हैं, सेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैसेज ब्रोकर कर सकते हैं, लाइक रियल टाइम मैसेजिंग, नोटिफिकेशन, इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो डाटाबेस भी आप कर सकते हो, persistent मतलब स्टोर, यू कैन ऑल्सो स्टोर योर डाटा ऑन योर डिस्क स्टोरेज, देर आर सम ऑप्शंस। ओके, सो persistent डाटाबेस की तरह भी आप यूज कर सकते हो। तो ओके, बहुत थ्योरी हो गया, दिस इज टू मच थ्योरी, लेट्स जंप इनटू द प्रैक्टिकल। ओके, then let's create a small Node.js application with which you can see how to use Redis. So before that you should have your Node.js ready and Redis, you have to download Redis. Okay, so for Mac I have installed Redis. So you can go to this site redis.io downloads. Yeah, get Redis, here you can download, and if you go down, download community edition, then here you will get the complete step how you can download and install. Okay, for Mac you can just do with brew install Redis, then Redis server to check if it is running or not, then brew server services Redis, start Redis, then क्या क्या चल रहा है Redis में, then stop server. Okay, and this is the default port for Redis. If I will do Redis server, it is giving me this, means it is installed. So for now I'll just start it, brew services Redis start. Yeah, so Redis successfully started Redis in the background. If I do ping also, I'll see Redis CLI, yeah, see, I can see this is running. Okay, so I checked from the Redis CLI. अभी क्या करेंगे, we'll go to our Node.js application. So basically desktop Redis. So first of all we'll create basic Node.js application, npm init -y, so that automatically everything got created. After that we'll do our npm install. So nothing much we'll need, it's a basic Node.js and Express application. We'll need npm install Redis Express
and if you want obviously .env, if you don't want it's fine. Okay, let's keep it simple, or if you want you can take .env. Oh sorry, I got it wrong from Redis. Okay, I think okay, yeah. तो ये हमारे यहाँ पे हो चुका है. अब सिंपल हम एक .env फाइल करते हैं. सो ये हमारा रेडिस का पोर्ट, जैसे कि हमने देखा पोर्ट एंड उसकी URL, एंड ये हमारा Node.js की पोर्ट. ओके, सो अभी हम एक सिंपल index.js बनाते हैं. What we'll do, first we'll import the export, sorry, सो पहले हम सारे इंपोर्ट कर लेते हैं. लाइक विल इंपोर्ट आवर एक्सप्रेस एंड .env const express require express const. अभी ये बहुत बोरिंग काम है, अगर आप करना चाहते हो तो स्किप करके कर लो. const .env, और हम ऐसे करते डायरेक्ट रिक्वायर करते हैं .env require .env then .config. okay, basic setup done, and हम app.use करेंगे for app.use for express.json. ये क्यों? क्योंकि हमें पार्स करना है JSON bodies. to parse JSON bodies, to parse JSON bodies. const port equals to process.env.port. okay, or 3000, then app.listen port, and यहाँ पे simply will do console.log. अभी हम रेडिस का काम करते हैं. ओके, सो फर्स्ट विल क्रिएट Redis client. Redis client will have all the methods of Redis. okay, so first Redis client create करने के लिए पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं. लेट्स से client, and this will be our Redis. sorry, we have to import create client first from the Redis. const require Redis. from Redis we'll import create client. okay, using this create client we'll create a Redis client. create client, and it will take the URL of the Redis URL. No, we have directly assigned, so we don't need this one. so what is our name? Let's see, it is Redis URL. so it will URL will be process.env.redis URL. हम क्लाइंट्स के साथ रेडिस के साथ कनेक्ट करते हैं यूजिंग दिस क्लाइंट. सो क्लाइंट इट हैज़ ए मेथड कॉल्ड कनेक्ट, विल कनेक्ट. ओके, देन आप देख सकते हो उसके अंदर देन है, कैच है, फाइनली है. अगर आपको सक्सेस मैसेज, एरर मैसेज कुछ करना है तो आप वो देख सकते हैं. तो यहाँ पे अभी वो सिंपल कनेक्ट हो गया. हम एक करेंगे कि जब कुछ भी हो कनेक्ट हो जाए तो रेडिस के साथ हम सक्सेसफुली एक मैसेज पास करेंगे, कंसोल करेंगे. सो क्लाइंट डॉट ऑन
ठीक है। ऑन लिसनर पे हम क्या करेंगे, कनेक्ट, अगर कनेक्ट वाला मेथड है, कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली, तो विल क्रिएट ए कॉल बैक मेथड एंड जस्ट कंसोल कनेक्टेड टू रेडिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक कनेक्शन रेडिस के साथ। एक पहले क्लाइंट क्रिएट करेंगे, क्रिएट क्लाइंट इंपोर्ट करना है रेडिस से, देन यूआरएल पास करना है, देन कनेक्ट करना है, देन ये इवेंट लिसनर पे, ये इवेंट पे हमें एक कॉल बैक मेथड पे जस्ट कंसोल कराना है। नाउ विल डू द बेसिक रेडिस ऑपरेशन, बेसिक रेडिस ऑपरेशंस। ठीक है, तो बेसिक रेडिस ऑपरेशन क्या है, पहले हम एक एंड पॉइंट बनाते हैं, आप डॉट गेट, सॉरी आप डॉट गेट सिंपल एक राउट करते हैं, लेट्स से डेमो एंड स्लैश बेसिक थिंग देखेंगे इसमें। यहाँ पे लेते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, इसको एशिंग में बना देते हैं, एशिंग। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे ट्राई कैच ले लेते हैं, ट्राई कैच, यहाँ पे कुछ आता है तो कंसोल डॉट लॉग एरर इन डेमो बेसिक, या तो एरर इन डेमो बेसिक ले लें, या तो एरर डॉट मैसेज को भी ले लेते हैं। सो बेसिकली रेडिस करता क्या है, रेडिस डाटा स्टोर करता है, तो हम अभी देखेंगे कि उसके अंदर डाटा स्टोर कैसे करना है। तो पहले फास्ट ऑपरेशन करते हैं कि एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। पहले स्ट्रिंग कैसे स्टोर करेंगे, पहले तो हमने ये देखा कि रेडिस हमेशा की वैल्यू पेयर में लेता है, हालांकि वो वेरियस डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है बट ऑलवेज इन की वैल्यू फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, आवट ले लेंगे, आवट जो हमारा क्लाइंट था, क्लाइंट को लेंगे, क्लाइंट डॉट इसके पास है एक सेट मेथड, ठीक है, सेट। तो ये सेट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो हम की देंगे, देन वैल्यू देंगे। लेट्स से की है हमारा ग्रीटिंग्स, ठीक है, एंड वैल्यू क्या होगा उसका, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एज ए नॉर्मल स्ट्रिंग हम कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रिंग को हमें गेट करना है तो कैसे करेंगे, लेट से लेट ग्रीटिंग देन इक्वल्स टू, देन अगेन आवट, देन क्लाइंट के पास है गेट मेथड डॉट गेट, एंड गेट में विल सिंपली पास दिस की ग्रीटिंग, whatever key we have passed here। ओके, ये हो गया हमारा ग्रीटिंग। इसको चाहे तो हम यहाँ पे कंसोल करा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ओके, ग्रीटिंग हो गया। देन ये हो गया हमारा सिंपल स्ट्रिंग। लेट्स से हैश फॉर्मेट में हम स्टोर करेंगे, हैश स्टोर करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, हैश मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ थिंग्स, तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले आवट ले लेते हैं, देन क्लाइंट। तो पहले हम क्या करेंगे, क्लाइंट को लेंगे, क्लाइंट डॉट सेम सेट मेथड, बट क्योंकि हैश सेट कर रहे हैं तो एच सेट होगा, HSET, इसके पास वो मेथड से है, ठीक है, हैश स्टोर करने के लिए एच सेट। इसके अंदर पहला आपको पता है कि क्या होगा, फर्स्ट विल बी द की, लेट्स से मैं की देती हूँ एक, इट्स ए यूजर 1, इट्स ए की यूजर 1, एंड द सेकेंड पैरामीटर विल बी द वैल्यू। सो वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, वैल्यू तो हमारे हैश है, तो एज ए ऑब्जेक्ट होगा, वैल्यू भी एक की वैल्यू पेयर में होगा। लेट्स से नेम, देन ईमेल एज 30, ओके, देन एक ईमेल भी ले लेते हैं, john@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैश के लिए हमारा एच सेट है, उसके अंदर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी द की,
second argument will be our value, which is also a hash or value, like a object kind of value. Okay, key value pair value. देन सपोज हम इसको गेट करेंगे, कैसे गेट करेंगे, लेट यूजर, देन क्या करेंगे, वही क्लाइंट को लेंगे, क्लाइंट डॉट एच, इसके अंदर है गेट करने के लिए, हैश वैल्यू को गेट करने के लिए एच गेट ऑल, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या देंगे, ऑब्वियसली हमारा की देंगे, कौन सा की, जिस की के नाम पे हमने सेव किया है, ये वाला की, यूजर 1, ठीक। सो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कैसे सेव करना है एंड ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर करना है, हैश वैल्यू कैसे स्टोर करना है। लेट से हम एक लिस्ट वैल्यू स्टोर करते हैं, लाइक आरे, ओके, एक लिस्ट वैल्यू स्टोर करते हैं, लिस्ट कैसे करेंगे, लेट से पहले हम लेते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट डॉट, इसमें है एल, ठीक है। तो लिस्ट को पुश करने के लिए हमारे पास है, जैसे आरे होता है, लिस्ट इज द अरे, ओके। तो लिस्ट में कैसे करेंगे, जैसे आरे डॉट पुश करते हैं, तो यहाँ पे सेम है एल पुश, एक मेथड एल पुश, एंड उसके अंदर हमें करना है, फर्स्ट पैरामीटर विल बी आवर की, व्हिच इज लेट्स से फ्रूट्स लेते हैं, या आप टास्क ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेट्स से फ्रूट्स। एंड सेकेंड पैरामीटर आपका क्या हो गया, द वैल्यू, लेट्स से एप्पल, and I'll call this 2-3 times. Let's say second fruits will be grapes and third will be orange, ओके। तो हमने इसे पुश कर लिया, मतलब आरे में डाटा इंसर्ट कर लिया। अब आरे से डाटा लेंगे कैसे, लेट्स लेट फ्रूट्स, ऐसे सेम है हमारा, क्लाइंट के पास एक है डॉट एल रेंज, ठीक है। एल रेंज क्या है बेसिकली, मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको डाटा चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ फ्रूट्स, पहले हम लेंगे फ्रूट्स, देन सपोज आपको सारे डाटा चाहिए, तो आप कौन सा लेंगे, फर्स्ट इंडेक्स से -1 इंडेक्स, -1 इंडेक्स मतलब सारे डाटा आपको देगा, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब ये होता है कि आप पहले की पास करो, देन स्टार्ट इंडेक्स पास करो, देन एंड इंडेक्स। अगर -1 एंड इंडेक्स देंगे तो पूरा सबको ले लेगा, अगर लास्ट अगर आप 2 दोगे तो 2 को इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, 0 एंड 1 ही लेगा। तो अगर आपको पूरे डाटा चाहिए तो 0 स्टार्ट इंडेक्स एंड -1 फॉर द गेटिंग ऑल द आइटम्स, ओके। अभी हमको मिल गया, अभी हम क्या करते हैं, सिंपल कंसोल नहीं लगाएंगे, रेस्पॉन्स पे सेंड करेंगे, रेस्ट डॉट जेसन, यहाँ पे हम सेंड करेंगे क्या क्या है हमारा, ग्रीटिंग है, देन यूजर, देन हमारा फ्रूट्स, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या करा समझ में आया, यहाँ पे पहले तो हम कैसे स्ट्रिंग सेव कर रहे हैं, उसको गेट कर रहे हैं, देन यूजर सेव कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोल हटा ही देते हैं, देन हैश वैल्यू कैसे स्टोर करें, उसको गेट कर रहे हैं, फिर लिस्ट स्टोर कर रहे हैं एंड लिस्ट को भी गेट कर रहे हैं, देन वहाँ पे हम फाइनली एज ए जेसन फॉर्मेट उसको ब्राउज़र में सेंड कर रहे हैं या फिर क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी, ये वाला हम टेस्ट करके अभी देखते हैं, डेमो बेसिक्स, ओके। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे रन करते हैं npm node index.js, ओके। तो देखो हमारा 3000 पोर्ट पे सर्वर चल रहा है एंड कनेक्टेड टू रेडिस ऑल्सो, सो लोकल होस्ट 3000/demo basics, सॉरी 2 टाइम्स आ गया। अगर आप देखोगे तो ग्रीटिंग्स में देखो आया हेलो वर्ल्ड, यूजर आया। तो अभी हमारा ये सारा डाटा कहाँ से आ रहा है, रेडिस से ही आ रहा है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर को सेव करता है, एंड ये हैश वैल्यू
ये हमारा लिस्ट और अरे एंड ये हमारा स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये हो गया बेसिक ऑपरेशन कैसे होता है। अभी एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि कैसे आप इसको आज कैसिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए एक एपीआई बनाते हैं पहले। ये हो गया हमारा डेमो बेसिक है। करते हैं कैशिंग कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप डॉट गेट यहाँ पे करते हैं डेमो कैश, देन सेम थिंग लेते हैं यहाँ पे सेम रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स ट्राई कैश ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज। पहले तो हम डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करते हैं एंड सेम डाटा विल स्टोर इन कैश। सो सेकेंड टाइम जब यूजर वो सेम एपीआई हिट करना चाहता है तो विल फर्स्ट सर्च इन द कैश। इफ कैश इज देयर एनी डाटा रिलेटेड टू दैट एपीआई then it will get from the cache, otherwise it will go for the database। and database में हम लोड देना नहीं चाहते क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है, इसीलिए हम अवॉइड करते बार बार डाटाबेस को लोड रिक्वेस्ट भेजना, डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करना। तो क्या करेंगे, पहले टाइम तो ये देखेगा कि ये कैश में है कि नहीं। अगर नहीं है तो डाटाबेस जाएगा, डाटाबेस से लाएगा एंड उसको कैश में सेव कर लेगा। सेकेंड टाइम हम सेम एपीआई हिट करेंगे तो इट विल गिव द डाटा फ्रॉम कैश एंड नॉट द डाटाबेस। ओके, एंड हम कुछ 60 सेकेंड का ऐसे कुछ मतलब लिमिट भी लगाएंगे कि 60 सेकेंड के बाद ये डाटा अपडेट भी हो जाना चाहिए, मतलब कैश रिमूव हो जाना चाहिए ताकि न्यू डाटा भी अपडेट हो। तो पहले क्या करते हैं, एक एक्सपेंसिव डाटाबेस ऑपरेशन पहले करते हैं। लेट्स से कॉन्स्ट डीबी ऑपरेशन, डीबी ऑपरेशन करते हैं। हैशिंग फंक्शन लेते हैं, देन प्रॉमिस करते हैं अवेट। हम थोड़ा 2 सेकेंड डिले करके करते हैं क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ डाटा है ही नहीं, तो ऑब्वियसली हम एक जस्ट सैम्पल डाटा क्रिएट करते हैं। हम क्या करेंगे, न्यू एक प्रॉमिस करते हैं एंड प्रॉमिस पे जस्ट सिंपल रिजॉल्व कर देते हैं। सेट टाइम आउट, मतलब 2 सेकेंड के बाद जानबूझ के हम एक नॉर्मल डाटा भेजेंगे कि ओके आपका डाटा डाटाबेस से आ गया, ऐसे जैसे लगेगा कि डाटाबेस में रियल डाटा आया। तो अभी हमारे पास क्योंकि कोई डाटाबेस नहीं है तो तुरंत डाटा दे देगा। सो डाटाबेस है ऐसे दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 2 सेकेंड्स का एक सेट टाइम आउट लगा के एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, जो कि सिंपल क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स देगा, नॉर्मल रिस्पॉन्स डाटा। लेट्स से दिस इज एक्सपेंसिव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। ठीक है, आप ये मान कर चलो कि यहाँ पे आपका कुछ गेट मेथड हो रहा है जो कि जो ऑपरेशन आपकी एसक्यूएल, मोंगोडीबी, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेस किसी भी डाटाबेस के अंदर ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा नहीं है, इसीलिए हम सिंपल एक प्रॉमिस के अंदर सेट टाइम दे के कुछ सिंपल कुछ डिले में डाटा सेंड करें, सिंपल एक डाटा। ये डाटा आपकी कोई भी डाटाबेस की डाटा हो सकती है। तो हमारा डीबी ऑपरेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो जब रिक्वेस्ट आएगा विल ट्राई टू गेट डाटा फ्रॉम कैश फर्स्ट, ट्राई टू गेट डाटा फ्रॉम कैश। ओके, सो उसके लिए क्या करें, कॉन्स्ट कैश डाटा को रिट्रीव करेंगे। कैसे, जैसे क्लाइंट पे करते थे हम, क्लाइंट डॉट गेट एंड इट विल बी लाइक एक्सपेंसिव डाटा देते हैं, एक्सपेंसिव डाटा।
ये की पे जो होगा उसको मतलब पहले तो हम डाटा कैश मेमोरी पे जाएंगे रेडिस पे एंड सर्च करेंगे भाई इस की पे क्या डाटा, वो हमें लौटा दो। अगर होगा तो देगा, अगर नहीं है तो फिर डाटाबेस कॉल करेगा। तो इफ कैस्ट डाटा है देन कंसोल डाटा फ्रॉम कैश ऐसे लिखते हैं एंड यहाँ पे ही रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन एंड यहाँ पे हम लिखते हैं डाटा जो हमारा आएगा होगा जेसन पे लिखते हैं जेसन डॉट पार्स करके कैस्ट डाटा एंड ये सोर्स लिख देते ताकि आपको पता चले कि कहाँ से आता है डाटा। डाटा सोर्स विल बी द कैश मेमोरी से डाटा आ रहा है अगर कैश डाटा है। अगर कैश डाटा नहीं है तो ऑब्वियसली विल कॉल द डाटाबेस। देन यहाँ पे एक सिंपल कंसोल कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग कैश मिस्ड fetching data from database। ओके देन डाटा हम रिट्रीव करेंगे डाटाबेस, जो कि हमारा ये डीबी ऑपरेशन है ना, ये फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है, डाटाबेस से डाटा आ गया। अभी क्योंकि डाटाबेस से डाटा आ गया उसको तो हम भेजेंगे क्लाइंट के पास, along with that we will store that data in cache for the further use। ओके सो क्या करेंगे अभी, वेट क्लाइंट डॉट सेट एंड ये क्यों ये एक्सपेंसिव डाटा ये की पे भी हम सर्च करते तो ये की पे ही हमें सेव करना पड़ेगा डाटा को एंड यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई करके हम डाटा दे देंगे। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, आप चाहे तो एक एक्सपायरी डेट दे सकते हो जी कि 60 सेकेंड का बेसिकली हमने दिया है। आप चाहे तो आपकी मर्जी जितना भी दे सकते हो, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट। ओके सो बेसिकली दिस इज 60 सेकेंड्स और 1 मिनट सेकेंड्स। ओके हो गया एंड सिंपली इसके बाद भी विल जेसन रेस्पॉन्स भेजेंगे, रेस्पॉन्स डॉट जेसन यहाँ पे भी लिखेंगे डाटा एंड हमारा जो डाटा इक्वल्स टू डाटा, ये वाला डाटा जो डाटाबेस से आएगा एंड दिस टाइम सोर्स विल बी आवर व्हाट डाटाबेस। ओके सो वेट सो पहले तो हम एक डीबी ऑपरेशन कर रहे हैं, ये आप मान लो कि आप MySQL से डाटा ला रहे हो। ठीक है, देन हम चेक करते कि कैश में डाटा पड़ा है क्या इस पॉइंट पे, इस की के नाम पे। अगर डाटा कैश में पड़ा है तो वहाँ से दे दो, अगर नहीं पड़ा है तो हम क्या करेंगे, डीबी ऑपरेशन वाले फंक्शन कॉल करेंगे एंड वो जो डाटा मिलेगा उसको कैशे में फर्स्ट स्टोर कर देंगे, उसको कुछ एक्सपायर डेट टाइम दे के। देन वो डीबी से जो डाटा मिला होगा इसको भेज देंगे। तो सेकेंड टाइम अगर उसको सेम हिट करेंगे तो उस टाइम कैश में डाटा होगा एंड वो हमें ये सेम डाटा फ्रॉम द कैश से भेजेगा, नॉट फ्रॉम द डाटाबेस। तो कहाँ से डाटा भेज रहा है इसीलिए हमने सोर्स दिया है ताकि आपको पता चले। ठीक है, अभी चलते हैं ये वाला पे हिट करके देखते हैं। पहले हमारा डाटा सर्वर रीस्टार्ट कर देते हैं। ओके तो ये था हमारा डेमो बेसिक्स। अभी हम चलते हैं अभी क्या आया, हमारा डाटा मिला हमें 2 सेकेंड के बाद, क्योंकि हमने जानबूझ के दिया था। और अगर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में किसी MySQL बहुत भारी डाटा के साथ करो तो आपको भी इतना टाइम लग जाएगा, मे भी ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये हमको मिल गया है डाटा, एक्सपेंसिव डाटा, क्योंकि डाटाबेस लोड लेता है, मतलब सर्च करके देगा, मतलब दैट विल बी लिटिल स्लो एंड एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे सोर्स हमारा है डाटाबेस।
ठीक है। अगर मैं इसी API को दोबारा हिट करती हूँ, ठीक है, मैं दोबारा हिट करती हूँ, सी दिस टाइम सोर्स इज कैश, ओके। सो हाउ मेनी टाइम्स आई विल हिट और रीलोड, दिस विल बी द कैश, ओके। सो इस पे हमारा क्या हुआ, डाटाबेस पे लोड कम हो गया, एक्सपेंसिव ऑपरेशन हुआ ही नहीं, कैश से आ रहा है डाटा, एंड हर एक मिनट में अपडेट भी हो जाएगा ताकि रियल डाटा भी हमारे पास आ जाए। अपडेटेड डाटा, डाटाबेस में जो अपडेटेड डाटा होगा वो सिंक हो जाएगा हमारे कैश डाटा के साथ। ऐसे नहीं कि अपडेटेड डाटा मतलब आउटडेटेड डाटा रहेगा कैश में, उसके लिए हम एक्सपायरी टाइम भी दे रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम रेडिस पे डाटा को सेव कराते हैं, यूज करते हैं रेडिस पे। ये बहुत ही फास्ट वे है, तो आजकल ये मार्केट में बहुत यूज होता है। तो ये था कुछ सिंपल ऑपरेशन की रेडिस में हम कैसे डाटा को स्टोर करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे, एंड रियल वर्ल्ड डाटाबेस सिनेरियो मतलब कैशिंग सिनेरियो पे कैसे होता है, कैसे स्टोर करते हैं, फिर डीबी ऑपरेशन करते हैं। अगर डाटा मिस हो गया कैश में तो डीबी कॉल करते हैं, डीबी से लेते, पहले उसको स्टोर कर लेते कैश में, देन वो डाटा सेंड करते हैं क्लाइंट को। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, एंड अगर आपको समझ में आया वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड किसी को चाहिए तो वीडियो शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।